May the peace of Lord and grace be with you all. Thank you for my online viewers. I bless your name. I bless your name, the Lord Almighty, who is and who is to come. Thank you, Father, for this privilege that you have given it to us once again into your life, so we can gather into the platform through the Holy Sanctuary Ministry, the platform you have provided us, Lord. We are so blessed, and we are so grateful and thankful for all your plans, and thank you for your presence with us, Lord. We bless your name, praise your name, glorify your name, Lord. Father, come and take a charge that you are in charge, as you are already in control, and you are in charge for all of us, Lord. Let's take the charge for this meeting and let meeting go smooth and effective, Father. We pray for all our believers and all our friends and participants who are away from right now. We pray for your blessing be upon them, Lord. We pray for that you bless them, bless their hearts, so we can all come together as your church, as you planted a church with your blood, of Lord Jesus Christ. So we can gather into your blood and come in divine protection, and we can worship and glorify your name, Lord. Fill us with your spirit, Lord. Let this meeting we go smooth and effective and be accepted in a throne of grace in the mighty name of Lord Jesus Christ. In your holy presence, O Lord. We worship you, O Lord. We give you thanks and praise. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. All the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord. Oh, all the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. You gave life, you are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अभी हमारे साथ मुस्कान है। मुस्कान से कहूँगी कि वो खुदावंद की प्रस्तुति में कोई गीत गाएं। फिर आज का कलाम पास्टर इरफान ने करना था, लेकिन उनका कोई लाइट इशू है, वो नहीं आ सकते, लेकिन मैं खुदा के कलाम की खिदमत करूंगी। तो आइए हम मुस्कान के साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति में कोई गीत गाएंगे। मसीहत से में आप सबकी सलामती हो। आइए हम खुदा के हज़ूर वर्शिप करेंगे, खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा। जलाल तेरा पलक पर खुदाया कायम है। जलाल तेरा पलक पर खुदाया कायम है। समीप
है चर्चा आम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरे रब, है चर्चा आम तेरा, यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा, तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को, तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को, ये आसमां चांद तारे ये सब जहान तेरा, ये आसमां चांद तारे ये सब जहान तेरा, यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा, मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है, मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है, किसी खानों के लब से बहे जलाल तेरा, शीर खानों के लब से बहे जलाल तेरा, यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा, यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा, बुजुर्ग नाम तेरा। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का नाम बुजुर्ग नाम है, खुदावंद ही बुजुर्ग है, वो बुजुर्गी के लायक है। हम उसकी हम तो सताइश करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल होंगे। हमारे साथ पास्टर हरजीत सिंह है, मैं उनसे कहूंगी कि अगर उनकी फैमिली और वो खुदावंद की प्रस्तुश में गीत गाना चाहेंगे तो वो खुदावंद की प्रस्तुश करें। जब तक कि आज कलाम खुदा के कलाम की खिदमत मैं करूंगी, उसमें इंग्लिश उर्दू दोनों और हिंदी दोनों जो भी है, उसमें जैसे भी खुदावंद का जैसे ही खुदावंद का रूह मुझे गाइड करेगा मैं इस कलाम की खिदमत करूंगी। तो ये हम खुदावंद की प्रस्तुश करेंगे पास्टर हरजीत और उनकी फैमिली के साथ मिलकर। तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू देंदा है करे, देंदा है करे दिया, तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू देंदा है करे, तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू देंदा है
हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ही मुझे हमें हिम्मत देता है, ताकत तवानाई देता है। वही हमारी ताकत और तवानाई है हमारी, क्योंकि वो हमें कंट्रोल करता है। हमारे जिस्म की एक एक चीज को वो कंट्रोल करता है, हमारी रूह, हमारी जान को, सबको, हर चीज का उस पे कंट्रोल है। तो आइए हम खुदाउन की प्रस्तश में आगे बढ़ेंगे। मारिया हमारे साथ है। मैं मारिया से कहूंगी कि वो खुदाउन की प्रस्तश में कोई गीत गाएं, फिर उसके बाद हम खुदाउन के कलाम की तरफ पढ़ेंगे। मैं फिर मारिया, आप फिर गीत वर्शिप के बाद आप कोर्स भी गाएं, तो फिर मैं आज खुदाउन के कलाम की खिदमत करूंगी। जी हालेलुया। हाँ मसीह जी, के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। यीशु नासरी, यीशु नासरी, हर एक लब कवे यीशु नासरी, जिन्ने मौत नो हराया, पापां दा मुले चुकाया, जिन्ने मौत नो हराया, पापां दा मुले चुकाया, कोई होर ने जे बोलो यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी,
हर एक लब कवे यसु नासरी, यसु नासरी, यसु नासरी, हर एक लब कवे यसु नासरी। शान निराली है, कब्र भी खाली है, हर एक कम जला लिए। शान निराली है, कब्र भी खाली है, हर एक कम जला लिए। जिन्हें मुर्दे ने जिलाए, नाले लंगड़े है चलाए। जिन्हें मुर्दे ने जिलाए, नाले लंगड़े है चलाए। कोई होर ने जो बोलो यसु नासरी, यसु नासरी, यसु नासरी, हर एक लब कवे यसु नासरी, यसु नासरी, यसु नासरी, हर एक लब कवे यसु नासरी। जेड़ा इब्तदा है नाले इंतहाए, कादिर मुतलिक खुदा है। जेड़ा इब्तदा है नाले इंतहाए, कादिर मुतलिक खुदा है। इंसान बन के आया, सानू अपना है बनाया। इंसान बन के आया, सानू अपना है बनाया। कोई होर ने जे बोलो यसु नासरी, यसु नासरी, यसु नासरी, हर एक लब कवे यसु नासरी, यसु नासरी, यसु नासरी, हर एक लब कवे यसु नासरी। फिर जदों आवेगा नाल ले जावेगा, तख्त ते नाल बिठावेगा। फिर जदों आवेगा नाल ले जावेगा, तख्त ते नाल बिठावेगा। जिदा ना दवे रहाई, नहीं मुकने बादशाही। जिदा ना दवे रहाई, नहीं मुकने बादशाही। कोई होर नहीं जे बोलो यसु नासरी, यसु नासरी, यसु नासरी, हर एक लब कवे यसु नासरी, यसु नासरी, यसु नासरी, हर एक लब कवे यसु नासरी, यसु नासरी, यसु नासरी, हर एक लब कवे यसु नासरी। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रस्तुत को जारी रखें। जी, कोर्स के गीत आप प्रस्तुत करें। तो क्योंकि मुझे पास्टर इरफान भी मैसेज करें, आज उनका डे है, लेकिन अभी मुझे उन्होंने कंफर्म नहीं किया, तो आप प्रस्तुत को जारी रखें। हालेलुया जी। यस। यीशु नाम, 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 यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दरवाज़ा ही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दरवाज़ा ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंदरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए,
अंधेरों में राह दिखलाए, खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे बहियारा, खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे बहियारा। ये सुनाम, 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 ये सुनाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो आराम। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो आराम। ये सुनाम, 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 ये सुनाम। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। ये सुनाम, 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 ये सुनाम। हालेलुया। आंटी जी अपना माइक ऑन। जमीन और आसमान के नीचे और कोई नाम नहीं दिया गया सिवाय यीशु के। यीशु ही नाम है, यीशु ही है जिसके इमेज पे हम बनाए गए, यीशु ही है जिसके वसीला से हम बनाए गए और जिसके लिए बनाए गए और जिसके वसीला से हम कायम रहते हैं। खुदाउन का शुक्र अदा करते हैं इस यीशु नाम के लिए, खुदाउन के इस बड़े मंसूबे के लिए कि इंसान क्या सोचता है, लेकिन खुदाउन जो है वो इतना अपराइट है, इतना राइचस है कि वो हमारी सोचों से बढ़ के सोचता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारी भलाई के लिए क्या जरूरी है। तो मैं मारिया और प्रबल से कहूंगी कि वो कोर्स गाएं। आज पास्टर इरफान ने करना था, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं 10 मिनट्स में ज्वाइन करता हूँ। मैंने उनको कहा है कि भी हम टाइम की नजाकत को सामने रखते हुए हम आगे चलेंगे। तो मैंने उनसे कहा है कि आज चले, मैं खुदा उनके कलाम की खिदमत कर देती हूँ, उसके बाद वो कर लेंगे। तो मारिया प्रबल आप कोर्स गाएं, फिर हम खुदा उनके कलाम की तरफ पढ़ेंगे। हालेलुया। सहारा नहीं कोई तेरे सिवा, संभालूंगा मैं ही, तूने कहा। सहारा नहीं कोई तेरे सिवा, संभालूंगा मैं ही, तूने कहा। तेरे कदमों में आने को बेताब हूँ, तेरे कदमों में आने को बेताब हूँ। लब को तू खोल, मुझसे तू बोल, लब को तू खोल, मुझसे तू बोल। तेरी आवाज सुनने को बेताब हूँ, तेरी आवाज सुनने को
बेताब हूँ, तेरी आवाज सुनने को बेताब हूँ। लब को तू खोल, मुझसे तू बोल, लब को तू खोल, मुझसे तू बोल। आमीन, हालेलुया। मैं पास्टर हरजीत सिंह से कहूंगी कि वो खुदा उनके कलाम के लिए दुआ करें प्लीज। ਆਓ ਸਭ ਜਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਅੱਜ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ वचन बोलिया जावे प्रभु, वो वचन सचमुच तेरा है। और प्रभु जी जो भी आज सुनिए प्रभु जी, सचमुच जीवन बदल जाए। बरकत दो यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम खुदाउन के कलाम को अपने दरमियान अपनी तालियों की आवाज में वेलकम करेंगे। हम इतनी देर से वर्शिप कर रहे थे, अब हम खुदावन की मीठी आवाज को सुनने के लिए बेताब थे। अब हम खुदावन की आवाज को सुने और देखें कि खुदावन के दिल में हमारे लिए क्या है और खुदावन की इंस्ट्रक्शन हमारे लिए क्या है, ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं, क्योंकि खुदावन की मर्जी है और खुदावन की अपनी ही पाक मर्जी है कि उसने अपने आप को कुर्बान किया और उतनी पाक मर्जी से उसने ये सारा कुछ बनाया। उसकी खुशी है, वो अपनी इस चीज को कायम रखना चाहता है। और फिर उसने जैसे हम उसके बेटे और बेटियां, हमारी तनबी के लिए, हमारी इंस्ट्रक्शन के लिए उसने कलाम मुकद्दस को लिखा, और फिर ना के लिखा बल्कि अपने अल्फाज हमें दिए अपने नबियों के जरिए, बल्कि खुद भी जमीन पर आके उसने वो अपना वादा पूरा किया, ताकि हम उसके उस प्लान को समझकर और उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें, फिर हमें कसरत की जिंदगी मिलती है। आज का जो कलाम है, मैं मुझे ये खुदावन की तरफ से मिला है। वैसे तो सारा कलाम ही खुदावन ने दिया है। तो जो टॉपिक आज खुदावन ने मुझे दिया है, जो वर्स मुझे खुदावन ने दिया है, जिसको मैंने कल भी एक चर्च में किया था, लेकिन मैं आप लोगों के साथ भी करना चाहती हूँ कि इस पे मैं बात करूं। तो आइए हम खुदावन के रूह कुदूस की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो यहाँ पे मौजूद है। और मैं खुदावन से मिन्नत करती हूँ कि खुदा बाप, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन तूने अपनी बंदी को ये शर्फ बख्शा कि तेरी बारगाह में दाखिल हो सके और तेरे तख्त पर आकर आए खुदाम, तेरे कलाम की मनादी कर सके। वापस मानी हम कुछ नहीं है जब तक तू हमारे अंदर ना हो, जब तक तेरा रूह ना बोले हम कुछ नहीं बोल सकते। हमारी जुबानें, हमारे हाथ, हमारी सोचें, अय खुदाम, वो तेरी सोचों से बिल्कुल नाकिस हैं, लेकिन तेरी सोचें बहुत बड़ी हैं और तू हमेशा बड़े काम करता है। और तेरी इन सोचों और तेरे इन ख्यालों को मैं अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अपने पाक रूह को मुझ पर ढेल आए खुदाम, ताकि मैं ना बोलूं, तेरा पाक रूह हम सबसे कलाम करे, ताकि हम तेरे दिल की बातों को सुने, समझें और अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। आमीन। तो वर्स मैं इंग्लिश और उर्दू पंजाबी सब में ही बोलूंगी, तो कोशिश करूंगी कि भी मैं मतलब सबको समझ आए। तो द स्क्रिप्चर जो मैंने लिया वो मैथ्यू 6:33 से, but seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added to you। कि मत्ती उसका 6 बाप उसकी 33 आयत में कहता है कि तुम सबसे पहले तो तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी को ढूंढो, फिर सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी।
के mean the first mean is the man's first duty and God's promise. मतलब ये है कि Jesus Christ instruction is to his disciple कि वो अपने चेलों को, अपने रसूलों को वो क्या नसीहत कर रहा है कि man's first duty and the promises of God. Look at the verses. देखें कि वर्स में क्या वायदा है कि सबसे पहले तो तुम अपनी ड्यूटी, तुम्हारी ड्यूटी क्या है उसको जानो, फिर उसके बाद खुदावन में जो आपकी ड्यूटी है तुम उसको जानो, फिर उसके बाद जो उसका वादा है वो तुम्हें पूरा होता है। तो खुदावन के वादे हमारे साथ हमेशा ऐसे ही हैं जैसे कि सबसे पहले हमें अपना जॉब करना है। We have to do the essential duties, then we will get paid, or first do some labor before you get your wages. मतलब कि सबसे पहले तुम अपनी जॉब्स करो, जो खुदावन ने तुम्हें जॉब्स दी है उसको करो, फिर उसके बाद तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। कि मतलब कि जब तक तुम खुदावन की बादशाही को या खुदावन की रासपाजी को नहीं ढूंढ लेते तुम्हें कोई चीज नहीं मिलती। तो ये खुदावन क्यों कह रहा है कि हम इसको इसको पूरी वर्सेस को पढ़ेंगे, इसको मतलब बस थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा ऊपर की वर्सेस भी पढ़ेंगे। We will read a little more of the scripture, we see why Jesus is saying that. तो मैंने यहाँ पे की हुई है, मैं उसको देखती हूँ कि Matthew 6:25-34 he said, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Isn't life more than food, and the body is more than clothes? Look at the birds of the airs. They do not sow or reap or store away in the barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any of you worrying add a single hour to life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all the splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today, and tomorrow it will be thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? Do not worry about anything. What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans runs after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first the kingdom of God, kingdom and his righteousness, and all these things will be given it to you as well. They do not worry about anything. कि यीशु मसीह कह रहा है कि तुम सब, वो अपने चेलों को कह रहा है कि बता रहा है कि तुम क्यों हर वक्त दुनियावी चीजों की परेशानी और फिक्र में लगे रहते हो, क्यों हर वक्त तुम ये चीज सोचते रहते हो कि why you worry too much, why are you so anxious, क्यों इतने, क्योंकि देखो कि आसमान के परिंदे जो हैं वो मतलब कि अगर खुदावंद उनको फीड कर सकता है, अगर मतलब कि क्या तुम्हें फीड नहीं कर सकता, कि तुम तो उनसे ज्यादा प्रेशियस हो। कि कहने का मतलब है कि खुदावंद ने हर चीज तो अपने मुंह के अल्फाज से बनाई है, लेकिन तुम्हें तो उसने स्पेशल बनाया है, तुम्हें तो उसने अपने हाथों से बनाया है। बाकियों को तो उसने सिर्फ कहा तो उनके उनमें मतलब उनके कहने से उनमें जिंदगी आ गई, परिंदे बन गए, मछलियां आ गई और जानवर बन गए, लेकिन तुम्हें बनाने के लिए तो उसने अपने सांस तुम्हारी नसों में पहुंचे, तुम तो उससे ज्यादा प्रेशियस हो। तो तुम दुनिया की दुनियावी चीजों की परेशानी में क्यों फिक्र रहते हो? क्योंकि इसलिए कि तुम्हारा ईमान कमजोर है। तुम हर वक्त उन्हीं नॉन बिलीवर्स की तरह हर चीज में मतलब जो जरूरी, सबसे जरूरी चीज है उसको छोड़ के तुम जो जरूरी चीज हमारी जिंदगी के लिए नहीं उसके पीछे भागते हो। तो सबसे पहले, क्योंकि ये सारी चीजों को खुदावंद को पता है कि ये सारी चीजें आपको चाहिए, तो खुदावंद जानता है, उसको पता है कि हमारी जरूरत क्या है। तो क्यों हम अपनी जिंदगी को अजाब में हर वक्त डाले रखते हैं? क्यों हम खुदावंद की तरफ रुजू नहीं लाते? क्यों हम खुदावंद से क्यों नहीं मांगते? क्योंकि वो तो चाहता है। तो उसका जीसस इज सेइंग वी मस्ट डू व्हाट द क्वालिटी, कहता है कि किंगडम को ढूंढो, खुदा की बादशाही, उसकी रास्तबाजी को ढूंढो, फिर सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। मतलब कि सबसे पहले तो तुम खुदा की किंगडम को देखो, उसको देखो कि उसके रूल्स एंड रियलिटी क्या है, पहले उसकी तरफ रुजू करो, उसकी तरफ आओ। जब तुम उसकी तरफ आओगे जिसने तुझे बनाया है,
और जो मतलब जो तुम्हें कंट्रोल करता है, हर चीज तो उसके हाथ में, हर चीज को तो वो कंट्रोल करता है। जब तुम उसके पास आओगे, उसकी रासपासी को ढूंढोगे, रासपासी मीन के उसकी मर्जी को पूरा करोगे, जो कि उसकी नजर में सही है, वो तुम्हारी फिर जिंदगी में हर चीज वो ऐड करता जाएगा। कि जस्ट एज सेइंग व्हाट वी मस्ट डू, लिव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि जीसस क्राइस्ट, खुदा ने हमें जमीन पे अनक्वालिटी लाइफ लेने के लिए नहीं रखा हुआ। खुदावन बाप ने हमें जमीन पर अपना इमेज, अपनी बादशाही कायम करने के लिए रखा है। और खुदावन को पता है कि खुदावन की मर्जी से हम जमीन पर, हम अपनी मर्जी से नहीं आए। क्योंकि खुदावन ने जब माँ हवा और बाप आदम को कहा था कि गो and multiply and bless the earth, you know, तो खुदावन की ये अपनी ब्लेसिंग है जिसकी वजह से हम मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो खुदावन की क्या मर्जी ये है कि हमें जमीन पर मारने के लिए, दुखों के लिए और हर चीज के लिए रखे? नहीं, खुदावन की ये मर्जी नहीं है। लेकिन ये कि खुदावन की मर्जी ये है कि जिसने तुम्हें बनाया तुम उसकी तरफ वापस मुड़ो, जहां पे तुम्हारा एक्सेस है, जो कि खुदावन के अराउंड ही हमारी जिंदगी, हम मतलब ऐसे खुदावन के साथ मैग्नेटिकली अटैच है कि हमारी जिंदगी खुदावन के बगैर हिल नहीं सकती। कोई पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर, तो हमारी जिंदगी कैसे हिलेगी? हमारी तो सांस भी उसकी दी हुई है। उसका दिल चाहे तो आज ही हमारी सांस को वापस ले ले। क्योंकि जब हम अपने तौर पे कुछ कर ही नहीं सकते, तो जब हम अपने तौर पे कुछ करते हैं तो हम मरते हैं, हम मतलब क़यामत में जाते हैं। तो हमें क्यों ना मतलब कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, खुदावंद हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ देना चाहता है। वो चाहता है कि तुम जिंदगी गुजारो और उस जिंदगी में पीस हो, जॉय हो और रास्तबाजी शामिल हो। रास्तबाजी ये है कि खुदावंद उसमें शामिल हो, खुदावंद की मर्जी उसमें शामिल हो, खुदावंद की तरफ से अप्रूव हो। तो उसकी बादशाही का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा ढूंढूंगी कि खुदावन की बादशाही क्या है। मैं इस पे बात करूंगी कि जब कहते हैं ना कि किंगडम ऑफ गॉड, कि जब हम देखते हैं कि जस्ट रिमेंबर दैट द किंगडम ऑफ गॉड और द किंगडम ऑफ हेवन, क्योंकि जब हम कलाम पाक पढ़ते हैं तो उसके खुदावन की बादशाही के बारे में जिक्र किया गया। उसमें 70 से ज्यादा पुराने और नए अहदनामे में खुदावन की बादशाही के बारे में जिक्र किया गया है। और खुदावन की बादशाही है क्या? खुदावंद की बादशाह ये है कि खुदावंद ही बादशाह है और खुदावंद की रूल्स एंड रेगुलेशन और खुदावंद के कमांडमेंट। लेकिन खुदावंद की बादशाही किस पे मबनी है? कि खुदावंद की बादशाही या आसमान की बादशाही या डेविड की बादशाही या यीशु की बादशाही, इट्स द सेम थिंग। The kingdom of God, the kingdom of heaven, the kingdom of David, the kingdom of Jesus is the one kingdom, which is the kingdom of Jesus Christ. So who is the King of the Kings? Jesus Christ is the King of the King. Father's will, Father's wish is for us to know his Son, and through his Son everything was made, and through him everything he restored, and through him we get everything. And he is the kingdom, he is the king of the kingdom of God. We will read further. Our whole the Bible is telling about the kingdom of God. खुदावन ने मतलब अपनी बादशाही को कायम करने के लिए उसने किस तरह स्लोली खुदावन इंसान के साथ चला, कि आसमान से वो अपनी बादशाही जमीन पर लेकर आए। किस तरह वो स्लोली जिस तरह के शैतान ने इंसान को खुदा से सेपरेट, खुदा ने उसी वक्त अपनी बादशाही, अपनी डोमिनियन कायम करने के लिए इंसान को हर चीज इंसान के कब्जा में दे दी थी। लेकिन इंसान ने उसको अपनी गलती की वजह से अपने हाथों से छुड़ा के शैतान के कब्जा में दे दी। लेकिन अब जो दुनिया है शैतान के कब्जा में है, लेकिन खुदावंद अपने उसके बावजूद भी खुदावंद मतलब खुदावंद, क्योंकि शैतान तो खुदा के बराबर नहीं है। खुदा ने तो शैतान को बनाया, शैतान ने तो खुदा को नहीं बनाया। शैतान कोई सेकंड एंटिटी तो नहीं है, वो भी तो खुदावन की क्रिएशन है। लेकिन उसने मतलब उसके दिल में नफरत थी कि वो इंसान को खुदावन के साथ देख नहीं सकता था। तो उसने मतलब इंसान को पहले दिन से खुदावन से अलग करने की मंसूबे, अभी तक वो मसलसल कोशिश करता है। लेकिन ये है कि खुदावन की जो बादशाही है उसको समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा गहराई में जाना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि भी खुदावन की जो बादशाही, जो कि यीशु की बादशाही है, वो किस तरह यीशु की बादशाही है। कि जब यूहन्ना जब बपतिस्मा देने के लिए निकला तो उसने कहा कि तौबा करो, खुदा की बादशाही करीब है। मतलब कि खुदावन की बादशाही आ रही है, क्योंकि यूहन्ना को खुदावन ने खुदावन की बादशाही को करने के लिए भेजा था। उसने और उसके बाद और सारे प्रॉफिट्स जितने हैं उन्होंने भी खुदावन की बादशाही में के बारे में जिक्र किया। और हम इसको आगे देख सकते हैं कि जब
जबकि मैंने फरमाया कि ओरिजिन ऑफ द मीनिंग ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, के खुदावन के किंगडम का आगाज तब हुआ जब मतलब के ओरिजिनली खुदावन ने अपने उस प्लान को फुलफिल किया जब वो जमीन पर नीचे आया और उसने कहा कि तौबा करो आसमान की बादशाही, क्योंकि आसमान की बादशाही के काम जो थे वो उसके ही जरिए से हो रहे थे। इसलिए वो आसमान की बादशाही मतलब आसमान की बादशाही मीन के जो आसमान में मिरेकल्स होते हैं, आसमान के ऊपर ना कोई दुख है ना तकलीफ है, हर चीज कसरत से है और पीस है, हर तरफ पीस है और पीस ही पीस है। तो वो आसमान की बादशाही हम में तब आती है जब हमारे अंदर यीशु मसीह होता है। तो जब हम यीशु मसीह को समझ लेते हैं और उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, देन दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड वी सीक। फिर उसके बाद हम उसकी रास्तबाजी में कैसे चलते हैं कि जब खुदावंद बाप ने कहा कि दिस ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, तो खुदा पाक की मर्जी क्या है कि उसकी बादशाह में एंटर होने के लिए तुम उसके बेटे की सुनो पहले, और उसकी बादशाही को जानने के लिए कि उसका जो मंसूबा था हमारे लिए उसको समझो कि उसका मंसूबा ये है कि उसके बेटे के वसीला से तुम्हारे गुनाहों का कफारा अदा किया हो चुका है और वो फॉर एवर हो चुका है। उसमें ये है कि आपके प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट के और फ्यूचर के गुनाह सारे माफ है उसके अंदर। हम जानबूझ के गलती ना करें कि हमारे मतलब हम मसीह में हो गए हैं तो अब हम गुनाह करें, बार बार मैं इसको कहती हूँ हम गुनाह ना करें। लेकिन ये है कि जब हम जाने में जाने में गलती करते हैं, लेकिन हमें इस चीज की हमारे पास प्रिविलेज है, हमारा फायदा है कि अगर हम जाने जाने में कोई ऐसी गलती खता कर भी देंगे तो फिर भी बाप आसमानी जो है ना वो हमारी गलतियों खताओं को हिसाब में नहीं लाता। क्यों? अपने बेटे के वसीला से कि जो खून उसने बहा दिया उसके वसीला से हमारी गुनाह माफ करता है। सबसे पहले तो हमें मतलब खुदावंद की बादशाह को देखना है कि खुदावंद के मंसूबे को समझना है। उसका मंसूबा क्या है कि उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि हमारे गुनाहों का कफारा हो सके, ताकि हम उससे दोबारा मिल सके, तक हम कसरत की जिंदगी पा सके। फिर उसके बाद उसके बेटे की जो मर्जी है कि वो जो बाप मतलब जो वो चाहता है, बेटा चाहता है वो करें। अगर हम उसके और फादर की मर्जी ये है कि हम बेटे की सुने, तो बेटे की मर्जी ये है कि वो बाप की मर्जी को पूरा करे। तो बाप की मर्जी क्या है कि बेटे के वसीला से हम नजात पाएं। तो जब हम नजात याफ्ता हो जाते हैं, फिर उसकी बादशाही में दाखिल हो जाते हैं, फिर हम उसकी बादशाही के हिस्सादार बन जाते हैं, फिर हम उसकी रास्तबाजी में चलते हैं। रास्तबाजी ये है कि इट इज द वर्च्यू ऑफ द हाई वर्च्यू ऑफ द गॉड व्हिच इज एवरीथिंग शुड बी राइट इनटू हिज आई। खुदावन जो जस्टिफाइड फायर जज है, उसकी नजर में जो ठीक है वो ही राइचसनेस है, जो ट्रूथ है वही राइचसनेस है, प्योर एंड क्लीन। तो राइचसनेस ये है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें, और जब हम उसकी बेटे की सुन के और बेटे के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो वो बेटा सेट करता किए हमारे लिए, हम उसको फॉलो करें, उसके साथ फेलोशिप करें, और फिर हम उसकी रास्तबाजी में और उसके बताए हुए उनको अमल करें, तो फिर खुदावन की नजर में मकबूल ठहरता है। फिर खुदावन जो है ना वो हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग्स ऐड करता है। तो जब मैंने कहा कि भी खुदावन मतलब खुदावंद की बादशाही और खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही का मतलब ये कि मतलब कि कैसे हम कह सकते हैं कि मतलब हम सब ईमानदार जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही बादशाह है और खुदावंद यीशु मसीह ही अपनी बादशाही को कायम करने आ रहा है, और वही बादशाह है जो फॉर एवर है। इसके बारे में मतलब यशायाह नबी ने भी प्रोफेसीज की कि बच्चा हमें दिया जाएगा, गवर्नमेंट उसके शोल्डर पर होगी। कि वो वर्सेस में मुझे पूरी नहीं आती, लेकिन उसमें ये है कि ही इज द अब्दियत का शहंशाह और अब्दियत का बाप और अब्दियत का शहंशाह, हम उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें उसका मतलब ये है कि जब यीशु जब अपने ग्रेट कमीशन का जब आसमान पे जब मतलब यीशु के हाथ में कंट्रोल है, जब यीशु मसीह के ही रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होने हैं, तो उसी बादशाही को हम क्यों ना जाने, पहले उसकी बादशाही को जान ले पहले। उसकी बादशाही ये है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो जमीन और आसमान पे चलेंगे वो यीशु मसीह के चलेंगे। और इसलिए कि यीशु मसीह ने जब आसमान पे जाना तो उसने खुद अपने रसूलों से कहा था कि कि जाओ तुम कौमों में बाप और बेटे रूल उसके नाम का बपतिस्मा दो। Then 11 disciples went to the Galilee when Matthew it's in a Matthew, but I don't know what chapter is that, but it say then the 11 disciples went to Galilee to a mountain where Jesus had told them
क्योंकि जहां से यीशु मसीह ने आसमान पे उठाया जाना था, वहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों को बुलाया और उनको कहा कि when they saw him they worshipped him but some doubted him. Then Jesus came to them and said, all authority. And Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given it to me. That means I am the king. Know me, because the kingdom of God is within me and through me. Come to me, because all the authority in heaven and earth has been given it to me. कि वो कहना है कि कहता है कि भी मतलब जब वो सारे यीशु मसीह ने आसमान पे उठाया जाना तो उसने अपने रसूल को बुलाया, कुछ ने तो उसको सिजदा किया और कुछ ने डाउट किया कि यीशु मसीह नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा कि पूरी दुनिया का, कुल दुनिया का, जमीन और आसमान पे सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि मैं उस पर रूल करूं। कैसे रूल करूं? कि मैं बादशाह, खुदा की बादशाही को शुरू करने वाला खुदावंद यीशु मसीह और खुदावंद की बादशाही का बादशाह भी खुदावंद यीशु मसीह है और सारा इख्तियार उसके हाथ में है। Therefore go and make disciple of all nations, not just like a Gentile, not just Jews. उसने कहा कि सारी दुनिया में जाओ और सारी दुनिया की कौमों के लोगों को रसूल बनाओ। उसने ये नहीं कहा क्रिश्चियन बनाओ, उसने कहा रसूल बनाओ। Disciple of all nations. तो जितने भी क्रिश्चियंस हैं जब यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं वो खुदावंद के रसूल हो जाते हैं और उन सब पे ये लागू हो जाता है कि वो खुदावंद की बादशाही में शामिल होकर खुदावंद की बादशाही की खुशखबरी सुनाए और खुदावंद की नाम की मनादी करें और खुदावंद के गवाह बन के जमीन पर ठहरें। फिर खुदावंद, यही खुदावंद की बादशाही का वर्क है हमारी जिंदगी में। Baptize them in the name of the Father and the name of the Son and the Holy Spirit. So 3 in 1, which is God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And who is God the Father, God the Son, God the Holy Spirit? Our only one God, God Almighty, who is Father, who is Son, and who is Holy Spirit. अगर खुदावंद यीशु मसीह जमीन पे है तो वो खुद बॉडी की सूरत में, तो वो खुदावंद है, अपनी ग्लोरियस बॉडी में वो जाहिर होता है। जिस बॉडी में वो नीचे जमीन पर उतरा उसी बॉडी में वो जमीन से आप ऊपर उठाया गया और उसी बॉडी में वो जमीन पर आता है और उसी बॉडी में ही वो जमीन पर आएगा। और ये बॉडी जो खुदावंद की है, इसमें और ऐड करती हूँ कि ये खुदावंद की अपनी बॉडी है। हमें खुदावंद ने बॉडी दी है, हमारी बॉडी उसने नहीं ली। तो खुदावंद अपनी ओरिजिनल बॉडी में भी आता है, जैसे कि खुदावंद रूह है और खुदावंद मुकम्मल इंसान भी है। तो उसमें ये है कि उसने, जब हम उसकी बादशाह उसकी उसकी उस सारी चीजों को समझ लेंगे, उसकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे और उसकी मर्जी से हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि बेटे की मर्जी है कि हम जिंदगी पाए, हमें जिंदगी देने के लिए वो कुर्बान हुआ। तो अब होली स्पिरिट जो है कि खुदावंद की सूरत में हमारे अंदर रहता है, तो होली स्पिरिट जो है वो हमें इस चीज की मतलब गाइडेंस देता है, अवेयरनेस देता है, हमें एजुकेशन करता है, हमें फादर की तरफ लेकर जाता है, हमें बाप और बेटे से मिलाता है। तो होली स्पिरिट इज द वन हु will be teaching us and showing us the kingdom of God. So we have to have a Holy Spirit. हमें Holy Spirit को लेना जरूरी है। जैसे कि किस तरह मैंने इसको कहा कि खुदावंद की बादशाही हमारे मतलब हम किस तरह ढूंढी थी, क्योंकि खुदावंद की बादशाही मसीह यीशु के वसीला से हमारे अंदर आ जाती। जब हम खुदावंद की बादशाही को अपने अंदर लेते हैं मसीह यीशु की सूरत में, with the help of the Holy Spirit, then we know the Father and we make the relation with the Father and the Son and we know their will. तो बाप की मर्जी क्या है, बाप का अप्रूवल क्या है, बाप की नजर में ठीक क्या है। तो फिर होली स्पिरिट हमारी हेल्प करता है ताकि हम खुदा की मर्जी को जान सके। और खुदावंद की बादशाही हमारे दरमियान किस तरह है, हमारे अंदर किस तरह रहती है, कि उसने कहा कि फरीसीज ने कहा कि खुदावंद की बादशाही है क्या है। खुदावंद की बादशाही, यीशु मसीह ने कहा कि खुदावंद की बादशाही ये नहीं है कि यहाँ है वहां है, या बड़ी बड़ी कोठियां हैं या बड़े बड़े बंगले हैं या बड़े बड़ी पार्टीज हो रही हैं जहाँ पे शराब हो रही है, शराब नोशी हो रही है, ड्रिंक हो रही है। खुदावंद की बादशाही तो तुम्हारे दरमियान में है, तुम्हारे अंदर है। जब खुदावंद यीशु मसीह और बादशाहों का बादशाह तुम्हारे अंदर आता है, उसकी जो टीचिंग है, उसके जो वर्डिंग है, खुदावंद के जो कवानीन है, वो तुम्हारी जिंदगी को चेंज करते हैं। तुम उसको यूज करते हो, तुम एकदम चेंज हो जाते हो। तो देन खुदावंद की बादशाही तुम्हारे अंदर आ जाती है। खुदावंद की बादशाही को देखने की चीज नहीं, खुदावंद की बादशाही इट्स विद इन अस। जैसे कि यीशु मसीह ने लूका की लूक चैप्टर 17:20-21 में
कहा कि now having been questioned the Pharisees as to when kingdom of God was coming. So when is the kingdom of God? There was a question to Jesus Christ by the Pharisee. He answered them and said, the kingdom of God is not coming with the signs to be observed, or nor will they say, look, here it is, or there it is. For behold, the kingdom of God is in midst you. कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि एक फरीसी ने खुदावंद से क्वेश्चन किया कि खुदावंद की बादशाही कब आएगी? तो खुदावंद की बादशाही तो आ चुकी है, क्योंकि यीशु ने कहा है कि खुदावंद की बादशाही तो तुम्हारे दरमियान में है, वो तो आ चुकी है. If I am down here, that means the kingdom of God is already come and it is onto the earth. तो हमें ढूंढना है कि खुदावंद की बादशाही है कहाँ पे है, जमीन पे है, कैसे है? मसीह यीशु के जरिए से. मसीह यीशु कहाँ पे है? वो हमारे अंदर है. वो कहता है कि अकल के अंदर तुम्हें नहीं पता कि खुदावंद की बादशाही तो तुम्हारे दरमियान आ चुकी है और तुम्हें पता भी नहीं है. खुदावंद की बादशाही ये तो नहीं है कि यहाँ है या वहां है, नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है. कैसे है? जब मैं तुम्हारे दरमियान में हूं तो that means the kingdom of God is among you. If I am living into you, that you are the one who are the kingdom of God, that I am living you, I'm ruling your life, that means you are the king, you are in you are in the kingdom of God and you are carrying the kingdom of God within you. जब तुम खुदावन को अपने अंदर ले लेते हो, उसको कबूल कर लेते हो और उसकी टीचिंग को मानते हो, that means that the kingdom of God is with you. This is the kingdom of God we are seeking. यही है खुदावन की बादशाही जिसकी हम तलाश कर रहे हैं. अब खुदावन की रास्तबाजी के बारे में मैंने पहले बताया कि खुदावन की रास्तबाजी क्या है और हम रास्तबाज कैसे कहलाते हैं. तो खुदावन की रास्तबाजी मसीह यीशु में हमारे अंदर उसी तरह है कि जैसे कि खुदावन की राइटियसनेस क्या है कि द लॉर्ड के वो कहता है कि जैसे यशाया नबी ने एक वर्स कोट की कि खुदावन की रास्तबाजी क्या है. तो वो कहता है कि यशाया 33:22, for the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king, it is he who will save us. मैंने पहले कहा कि जब हम खुदावन की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, जब हम उसकी मर्जी को तलाश करने की कोशिश करते हैं कि उसकी मर्जी क्या है, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि खुदावंद ही जो है वो ही लॉ मेकर है, खुदावंद ही हर चीज को कंट्रोल करता है और वही रूल्स एंड डिसिप्लिन वही सेट करता है. और हर रूल्स एंड डिसिप्लिन वही सेट कर सकता है. क्या हम अपनी मर्जी से चल सकते हैं? हम अपनी मर्जी से अपनी लाइफ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारी जिंदगी को चलाने के लिए हमारी जिंदगी का दारो मदार जो है ना वो खुदावंद के गिर्द घूमता है और खुदावंद की उसकी मर्जी, उस हमारा जो जिंदगी का चक्कर है वो खुदावंद के गिर्द है और उसको चलाने के लिए खुदावंद ही जो है ना वो कंट्रोल करता है. कंट्रोल उसके हाथ में है. ओही ला बनांदा, ओही कानून बनांदा, ओही प्रिंसिपल ओने जेड़े बनाए ने ओही चल रहे ने और ओही रहने ने पूरी दुनिया तक और हमेशा तक ओही रहने ने. किसी होर ने आके कुछ नहीं, क्योंकि ओही कला करदा है और ओदी रासबाजी है कि ओही जज है और ओही जज करदा है, ओही दसदा है कि ठीक की है ते गलत की है. कोई होर नहीं सानू दस सकदा. ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਰਾਸਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾ ਗਿਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮਕਬੂਲ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ, when we are not just not approval, there is no approval in God's eye, that we are not seeking the righteousness of the God. Righteousness of the God is the high virtue of the God, which is, he makes everything right. He's right in all area, in all way. He is the one who's right. कि हर चीज में वही ठीक है और जो वो करे, जो वो कहे वो सब ठीक है, क्योंकि वो ही राइचसनेस है और उसी से हमें वो राइचसनेस. और हम उसकी रासबाजी में किस तरह शरीक हो सकते हैं? जैसे कि उसकी रास्तबाजी में शरीक होने का सिर्फ एक ही हमारे पास हल है कि जब तक हम यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, अपने गुनाहों का कफारा नहीं अता करते, हम उसकी रास्तबाजी में शरीक नहीं हो सकते. तब तक हमारी जिंदगी में ना पीस आता है, ना खुशी आती है और ना ही कोई चीज ठीक होती है, क्योंकि खुदावंद की
बेटे के खून के वसीला से, उसके खून के वसीला से हम रासबाज ठहराए जाते हैं। हम ईमान के साथ रासबाज ठहराए जाते हैं। जब हम उसके बेटे पे ईमान लेकर आ जाते हैं तो हम रासबाज ठहराए जाते हैं। तो आगे वो कहता है कि स्पिरिचुअल राइचियसनेस ऑफ गॉड, स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज द क्वालिटी बीइंग राइट इन द आई ऑफ द गॉड्स, इंक्लूडिंग कैरेक्टर, नेचर and attributes in the conduct, code and the conduct, which is the right for our life, is the spiritual righteousness of the God. तो खुदावन जो है वो हमारी जिंदगी को चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसने सेट की हैं वो ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स हैं, उन्हीं को हमने फॉलो करना है। तब हम उसकी मर्जी को पूरा करने के बाद तब वो हमारी जिंदगी में सारी चीजें ऐड करता है। तो यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि तुम हर वक्त हर लम्हा अपनी जिंदगी को बीट अप करते हो, उठ जाते हो, हर वक्त फिक्रों, परेशानियों और डर और खौफ में जिंदगी गुजार रहे होते हो, क्योंकि जब तक खुदावंद की बादशाही और खुदावंद की रासबाजी को तुम नहीं जान सकते, कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम मतलब क्या चीज हो। क्योंकि मैंने पहले कहा है कि उसने कहा है कि भी तुम लोगों को ये नहीं पता कि तुम हो क्या, कि तुम्हारी वैल्यू क्या है उसकी नजर में, क्योंकि उसकी मर्जी से हम यहाँ पे हैं। हमारी अपनी मर्जी से हम जमीन पर नहीं आए, उसकी मर्जी है कि हम जमीन को फुल रखें, ब्लेस करें, प्रॉस्पर हों, अच्छी जिंदगी गुजारें। उसी की मर्जी से हम जमीन पर हैं, वरना हम हेवन पे ही होते। हेवन से जमीन पर लाने वाला खुदावंद है, जिस्म में ढालने वाला भी हमें खुदावंद है, और हमारी जिंदगी की सांसें भी वही चलाता रखता है, और हमारी जिंदगी की हर जरूरत को पूरा करने वाला भी वही है। तो क्यों ना हम पहले उसकी तरफ जाएं, बजाय इसके कि हम अपनी तरह अपनी दौड़ दौड़ते रहें और अपनी जिंदगी को बेवजह खत्म कर लें। तो यीशु मसीह कहता है कि इन फिक्रों परेशानियों का एक ही हल है कि तुम खुदावंद की तरफ दोबारा मुड़ो, उसकी मर्जी को जानो, उसकी बादशाही को जानो। उसकी बादशाही क्या है? कि उसकी बादशाही तो ये है कि वो बार बार बादशाही का जिक्र, क्योंकि वो अपनी बादशाही को कायम करने के लिए जमीन में मतलब तुम्हें रखा है उसने। तो उसकी बादशाही के रूल्स एंड रेगुलेशन और उसका फायदा भी देखो। तो उसका ये है कि जब हम मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं, मसीह यीशु को हम अपने बादशाह को जान लेते हैं, उसकी मर्जी को जान लेते हैं, उसके साथ रोजाना फेलोशिप करते हैं, when we have fellowship with our king every day, when we know his will, when we know his wish, when we seek him how he is and what he desire from his desire is for us, Lord, what he wants from us, when we fulfill those things, then he added how we fulfill these things by faith. कहते हैं कि जब तुम ईमान के साथ खुदावन अपने उस ईमान के साथ जो तुम खुदावन यीशु मसीह पर रखते हो, उसमें जब तुम ऐड हो जाते हो तब तो फिर उसकी भाषा में ऐड हो जाते हो, उस पर ईमान रखने से और उसको प्यार करने से। जब हम खुदावन को प्यार करते, खुदावन प्यार है, लेकिन वो हमें उसका प्यार हमारे प्यार से कितना ग्रेट है, उसके प्यार की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन उसकी मर्जी सिर्फ ये है कि हम पहले उसको जानें, उसको समझें और उसकी रासबाजी में चलें और उसकी मर्जी और उसके अप्रूवल के काबिल हों। हम अपने आप को इस तरह बनाएं और ईमान के साथ और उसको प्यार के साथ, तो हम तब खुदावंद की बादशाही को जान सकते हैं, हम तब खुदावंद की मर्जी को जान सकते हैं, तब उसकी नजर में हम कबूल करते हैं, तब हमारी जिंदगी में वो अच्छी चीजें ऐड करता है। उसके लिए हमें इतनी कोशिश और तगोदौ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही है कि हमें अपने गुनाहों से कफारा अदा करना है, हमें अपनी पुरानी रवशें छोड़ दी। तब तक हम खुदावंद की बादशाही में, हम कैसे खुदावंद की बादशाही में ऐसे एंटर नहीं हो सकते, पहले हमें शैतान की बादशाही को छोड़ना होगा, जो जमीनी बादशाह है उसकी रीत और रवायत को छोड़कर खुदावंद की रीत और रवायत को अपनाना है और उसके साथ उसकी मर्जी के मुताबिक चलना है। then and by faith, with the faith and with the love, by loving him because he loves us, because faith के बारे में वो कहता है कि but without the faith is impossible, क्योंकि faith के बगैर हम मतलब खुदावंद को खुश नहीं कर सकते। जब तक हमारा ईमान नहीं होगा हम खुदावंद को खुश नहीं कर सके। हिब्रूज में वो कहता है, हिब्रूज 11:6 में वो कहता है, but without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Hebrews 11:6 कहता है कि
ईमान के बगैर हमें खुदावंद को खुश करना नामुमकिन है। जब तक हम उस पे ईमान नहीं लाते, उसके बेटे पे ईमान नहीं लाते, उसकी मर्जी जो हमारे लिए है कि उसकी मर्जी ये है कि हम उसके बेटे पे ईमान लाएं और उसके वसीला से उसकी तरफ आए, तो तब हम खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हैं और तब हम उस ईमान के वसीला से बचाए जाते हैं जो कि हम उसके बेटे के वसीला से सेव किए हैं। इस चीज के लिए यही एक गास्पल है। इसी चीज की मनादी हो रही है पूरी दुनिया में कि दुनिया को बताएं कि खुदावंद की मर्जी क्या है, खुदावंद की बादशाही क्या है। खुदावंद की मर्जी ये है कि उसके बेटे के वसीला से जो उसने खून बहाया, उसके वसीला से हम अपने गुनाहों से कफारा अदा करें। हम शैतान की जिंदगी को छोड़ के आसमान की जिंदगी हासिल करने के लिए जो जमीन पर खुदावंद कायम करना चाहता है हमारी जिंदगियों में, हमारी हर रोजाना की लाइफ में, उसको हम पूरा करें, तो तब जाके हम जिंदगी में हमारी अच्छी चीजें ऐड होती हैं। और वो चीजें वो होती हैं जो नो कोई छीन सकता है। और वो चीजें ये नहीं होती कि 50, क्योंकि खुदावंद के घर में 50% या 10% कोई डिस्काउंट नहीं है। खुदावन के घर में 100% है। जो कुछ भी उसके घर से हमें मिलता है वो 100% मिलता है और परफेक्ट मिलता है। उसको ना कोई छीन सकता है और ना वो जाया हो सकता है। तो इसीलिए वो कहता है कि खुदावन की बादशाही को पहले ढूंढो, पहले उसको जानो, पहले उसको समझो, फिर उसकी मर्जी के मुताबिक चलने की कोशिश करो। और जब उसकी मर्जी और उसकी मर्जी के मुताबिक चलोगे तो उसकी नजर में जो ठीक है वही, क्योंकि उसकी मर्जी ये है कि हमें जिंदगी दे और कसरत की जिंदगी दे। उसकी मर्जी ये नहीं, क्योंकि वो खुद उसके वादे हैं कि मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। खुद हम अगर जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो हम उसकी मर्जी के मुताबिक चलें। फिर उसके बाद वो कहता है कि फिर उसके बाद और किस तरह हम खुदावंद को जान सकते हैं। हमारे पास बाइबल मुकद्दस है, हम उसको पढ़ें तो हमें हमारी गाइडेंस के लिए रूल कुदूस खुदावंद ने रखा है। खुदावंद की हजूरी हमारे अंदर थ्रू होली स्पिरिट रहती है। तो होली स्पिरिट खुदावंद का तीसरा रुकन है जो जमीन पर है, जो हमारी हेल्प पर है, हमारा गाइडेंस है। वो हमारी हर एक चीज को हमें बताता है ट्रूली, क्योंकि वो होली है। फिर वो होली थॉट्स खुदावंद की हमारे दिल में डालता है। फिर हमारे दिल दिमाग जिस्म में वो हर एक चीज को वो क्लेंस करता है। हर एक चीज जो हमारे फायदे के लिए वही हमें बताता है, और हर चीज जिसको हमने अवॉइड करना है वो भी हमें बताता है। तो उसकी मदद से हम खुदावंद की रासबाजी में शरीक होते हैं। होली स्पिरिट हमारा मददगार है, उसके वसीला से, उसी की रूह के वसीला से फिर वो हमें बाप से मिलाता है, फिर बाप की मर्जी मिलाता है, फिर बाप के दिल को दिखाता है हमें, और यीशु मसीह के दिल को भी दिखाता है, और फिर हमें ट्रू पिक्चर्स नजर आती है। फिर हमें पता चलता है कि हमारी वैल्यू क्या है, क्योंकि होली स्पिरिट हमें हमारी वैल्यू दिखाने के लिए भेजा हुआ है। हमें ये बताता है कि हम कौन है। तो हम परिंदे तो नहीं है कि जिसको खुदा ने मुंह से बोला तो हम कायम हो गए। हम घास फूस तो नहीं है कि खुदा ने कहा घास हो जाओ तो घास होगी। यीशु मसीह के कहने का मतलब है कि तुम्हें तो खुदावन ने अपने हाथों से मट्टी गूंद के, क्योंकि खुदावन ने एक्शन के मट्टी गूंद के फिर तुम्हारे अंदर अपना अपना दम फूंका, ना कि जुबान का दम फूंका, अपना दम जो उसके अंदर है वो दिया, ताकि हम उसके इमेज पर हों, हम उसके बेटे और बेटियां हों। तो खुदावंद यीशु मसीह में हमारी यही मर्जी है कि हम पहले उसकी बादशाही को ढूंढ लें, उसकी रासबाजी ये है। मैंने इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश की है। आगे मैं सिर्फ अपने सारे बहन भाइयों से यही दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज आज हम ये वादा करें कि हम अपनी जो फिक्रें हैं, अपनी जो सोचें हैं, वो खुदावंद को दें, खुदावंद की तरफ बढ़े, उसकी मर्जी को देखें, उसको जाने पहले, उसको समझें पहले, उसकी मर्जी को जाने, उसकी नजर में हम मकबूल ठहरें। तो जब हम मकबूल ठहरेंगे तो फिर हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा हमें क्या जरूरत है? खुशी और इत्मीनान और उसकी वफादारी और उसकी रासबाजी जो वो पूरा करने पे कादर है हमारी जिंदगी में। तो इसलिए खुदावन चाहता है कि खुदावन ने कहा कि पहले तुम उसकी बादशाही को ढूंढो और उसकी रासबाजी को ढूंढो, फिर हर चीज तुम्हारी जिंदगी में ऐड होती जाएगी। तो एक बिलीवर के लिए ये बहुत जरूरी है खुदावंद को ढूंढना, हर वक्त उसको ढूंढना, उसकी मर्जी को ढूंढना,
और उसकी बातों पे अमल करना, और जो उसने कानून, और ये इस चीज को जहन में रखना कि खुदावंद हर चीज में कंट्रोल खुदावंद का है, हमारा किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है। हम तो किसी पौधे को ये नहीं कह सकते कि उठ और वहां चला जा। हम बोलेंगे कोई शब्द तो कोई परिंदा जिंदा होगा, कोई परिंदा बनेगा? नहीं बनेगा ना। ये कुदरत खुदावंद में, हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर सिर्फ यही है कि हम अपने बाप की मर्जी को पूरा करें और उसके परों के नीचे रहें। जब तक हम उसकी हिफाजत में, हम सेफ हैं, हमारी जिंदगी में सुकून है, हमारी जिंदगी में खुशी है, हमारी जिंदगी में वो बरकत है जो वो हमें देना चाहता है, क्योंकि हर एक चीज उसी के हाथ में है और वही आसमान से हमें देता है। तो मैं इस कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करूंगी। आइए हम खुदावंद के लिए दुआ कर, इस कलाम के लिए दुआ करें। कुदूस नहायत मेहरबान बाप खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे प्यार, तेरी मोहब्बत और तेरे बड़े मंसूबों के लिए। क्या है खुदावंद, रूल कुदूस के वसीला से जो तू हमें सिखाता है, तू हमें बताता है कि तेरी मर्जी क्या है। तेरी मर्जी ये है खुदावंद कि तेरे बच्चे खुश रहें, सुकून से रहें और हमेशा की जिंदगी पाएं, और वो ग्लोरी ताज भी हासिल करें जो जिस तरह तूने यीशु मसीह को दिया, कि हम तेरे बेटे मसीह यीशु के वसीला से, जिसके इमेज पर हम बनाए गए, उसी के वसीला में हम कायम है और उसी के वसीला से हम कायम रहेंगे, और हम उसी की मर्जी को जाने, उसी के साथ फेलोशिप करें, और उसी को दिन रात हम पुकारें, और उसी के नाम के वसीला से तेरे तक के सामने आए बाप उस्मानी, तेरी मर्जी को शामिल करें। आए खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि जितने पार्टिसिपेंट ने हमें ज्वाइन किया, उन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारे कानों को खोला। ऐ खुदा, ये कलाम जो तूने हमें दिया, ताकि रूह कुदुस के वसीला से हम तेरी मर्जी को समझ सकें जो तू हमारे लिए रखता है, क्योंकि तेरी मर्जी इसी में है कि तू हर वक्त हमारी खुशी। तो मेरे दिल में यही तमन्ना है कि हम हर वक्त खुश रहें और शादमान रहें, और ये शादमानी है खुदा तूने बताया है कि तेरी तरफ से आती है, तो हम तेरी तरफ ही रहे आए खुदा। और इस कलाम के वसीला से आए खुदा, जितनों ने बरकत पाई और जितने इसको सुने वो भी इससे बरकत पाए। आए खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ वापस माने कि तूने मुझ जैसी नाकस चीज को तूने इस्तेमाल किया है खुदा, ताकि मैं तेरे कलाम की मनादी कर सकूं। है खुदा, जो कि आए खुदा, ये मेरी हिकमत और मेरी दनाई नहीं है, सारे अल्फाज और सारी हिकमत और दनाई तेरी तरफ से आती है खुदा। जो तूने मुझे दिया मैंने आए खुदा बोला, जो तेरी पाक मर्जी थी, जो तेरे दिल की बातें थी आए खुदा, मैंने तेरे लोगों तक पहुंचाई आए खुदा। और आए खुदा, तू आसमान से निगाह करना और इस पर बरकत डालना और सबकी जिंदगियों में ये बरकत और फल लेकर आए खुदा, ताकि आए खुदा हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं, हमारी जिंदगी में सुकून हो, खुशी हो, और हर वक्त हम खुश और खुश रहें, तुझ में आए खुदा खुश रहें और तेरी मर्जी के मुताबिक चलते रहें जब तक तू आ ना जाए। आए खुदा, तो हम सबको बरकत दे, और इसी तरह हम सबको अपने काम के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे। किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो दें। मम्मी। हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी खराब हो रही है।